है कि नहीं? Therefore, net equal and opposite charges appear on the two faces of the डायलेक्ट्रिक. डायलेक्ट्रिक के दोनों फेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर हो जाएंगे. तो इस चार्जेस को क्या कहते हैं? बिकॉज दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक. तो डायलेक्ट्रिक जो है पोलराइज हो गया बिकॉज देयर वर नो डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट इन द डायलेक्ट्रिक slab. The induced charges on the two faces of the dielectric set up an induced electric field EP inside the dielectric. जिसके कारण डायलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में डायलेक्ट्रिक के साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस साइड में नेगेटिव, इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी विच इज कॉल्ड ईपी. तो इन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो अप्लाइड फील्ड है उसके अगेंस्ट एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी. लेट अस सपोज सिग्मा पी and minus sigma p surface charge densities of the opposite faces of dielectric. Then the electric field due to polarization EP किसके बराबर होगी? सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक. डायलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसमें ई नोट जो है दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और ईपी क्या है? इंड्यूस्ड अपोजिट. तो नेट फील्ड विल बी ई जीरो माइनस ईपी. ई जीरो किसके बराबर है? ई जीरो इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड ईपी इज सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दस ऑन प्लेसिंग ए डायलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कैपेसिटर गेट्स रिड्यूस्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी कैपेसिटर के अंदर. Therefore, E is called reduced value of electric field. इसलिए E को reduced value of electric field कहते हैं. Next step, what is dielectric constant in terms of capacitance, in terms of electric field? The ratio of applied electric field intensity E0 to the reduced value of electric field intensity E on placing a dielectric between the plates of a capacitor is called dielectric constant. This is another definition of dielectric constant, that is K is, it is the ratio of applied electric field E0 to the reduced electric field intensity on placing a dielectric between the two plates of a capacitor. So this is another definition of K. Now since E0 is greater than E, E0 जो है वो reduced electric field से हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि E is E0 minus EP. Therefore K is always more than 1. Note, dielectric constant is also referred as relative permittivity of a dielectric. उसके बाद है electric susceptibility. E0 है external electric field, EP induced electric field inside the dielectric. E reduced electric field inside the dielectric किसके बराबर होगी? E0 minus EP. Also polarization vector, जो polarization vector है P, that is proportional to E. Polarization vector means कोई भी मटेरियल कितना पोलराइज होएगा, how much it is polarized when placed in electric field. This depends upon the applied electric field. It is directly proportional to E और P is equal to epsilon naught chi E. Chi E, this is called chi. The symbol is called chi. Put like this. This is called electric susceptibility. Epsilon naught chi E. Chi E is called electric susceptibility. Chi E किसके बराबर आ जाएगा? Chi E is equal to P upon epsilon naught into E. बड़ा यूनिट्स ऑफ chi E. P के यूनिट्स क्या होते हैं? P के यूनिट्स होते हैं चार्ज पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर. तो P is dipole moment developed per unit volume of the dielectric. P is dipole moment developed per unit volume of the dielectric, that is coulomb per meter square. Then epsilon naught के यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड E के यूनिट होते हैं न्यूटन पर कूलम. तो देखोगे सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे. chi E हैज नो यूनिट्स, तो chi E is simply a number, it is a dimensionless. But the relation between chi E and K,
दैट इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसमें भी सेम है, व्हाट इज ई जीरो। वी नो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई पी। तो व्हाट इज एक्सटर्नल फील्ड, इट इज इक्वल टू रिड्यूस्ड फील्ड प्लस ई पी इज इक्वल टू ई प्लस ई पी। ई पी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई प्लस जो सिग्मा पी है, ठीक है, पी इज डाइपोल मोमेंट, दिस इज डाइपोल मोमेंट दैट इज कूलम मीटर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज मीटर क्यूब। इसके यूनिट्स क्या है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड बट इज सिग्मा पी इज चार्ज दैट इज कूलम पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पी जो है वो सिग्मा पी एंड सिग्मा पी आर सेम क्वांटिटीज। तो पी सिग्मा पी को पी से जो है रिप्लेस कर दिया। बट मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी किसके बराबर होता है, हमने ऊपर पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट काई ई ई, एप्सिलॉन नॉट काई ई ई। इसको इससे रिप्लेस कर दो तो ई जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट कैंसल्स, तो दिस इज ई से डिवाइड कर दो इसको, ई से डिवाइड करोगे ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई ई। एंड व्हाट इज ई नॉट अपॉन ई, ठीक है, ई नॉट अपॉन ई इज के वैल्यू पुट कर दो, के इज इक्वल टू काई ई प्लस 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक susceptibility. Now some additional points. What is atomic or molecular polarizability? This is present by alpha. P is induced electric dipole moment in a single atom or molecule. जब भी कोई डायलेक्ट्रिक पोलराइज होता है तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल में जितना डाइपोल मूवमेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल पी। ई एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है, सिंस कैपिटल पी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड मोर डाइपोल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। दैट इज फॉर ए सिंगल एटम मॉलिक्यूल पी इज प्रोपोर्शनल टू ई जीरो और पी इज इक्वल स्मॉल पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई, where alpha is a constant and is called atomic or molecular polarizability and is given by alpha is equal to p upon epsilon naught, p upon epsilon naught e। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। p is dipole moment of a single atom or single molecule। ऐसा यूनिट सेम है, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, p is dipole moment that is कूलम मीटर, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ई के यूनिट न्यूटन पर कूलम। तो कैंसिल करके मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि अल्फा हैज द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इट्स डिमेंशंस क्या आ जाएंगी, एल क्यूब। अल्फा जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻29 मीटर क्यूब फॉर हाइड्रोजन एटम, आल्सो फॉर लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अल्फा इज इक्वल टू 10⁻30 पर 30 मीटर क्यूब फॉर एटम्स ऑफ हीलियम, नियोन और आर्गन एक्सेट्रा। That is for most of the atoms, alpha is of the order of 10⁻29 meter cube to 10⁻30 meter cube, which is of the order of atomic volume। अगर हम एटम का वॉल्यूम निकाल लें उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज ऑलमोस्ट 10⁻30। तो यानी कि अल्फा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और मॉलिकुलर पोलराइजेबिलिटी है, उसका ऑर्डर जो है लगभग सेम है, विच इज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल पी, it is defined as electric dipole moment induced per unit volume of the material। electric dipole moment per unit volume of the material, that is of the material when placed in an electric field। suppose there are n atoms per unit volume in some material, इसी मटेरियल में n atoms है per unit volume, तो उसका dipole moment क्या होगा, electric dipole moment is np, that is number of atoms per unit volume multiplied by dipole moment of single atom, or P is equal to Np, where N is the number of molecules per unit volume, P is electric dipole moment of one molecule। SI unit of P, SI unit of capital P क्या होगा, कूलम मीटर पर मीटर स्क्वायर, that is कूलम per meter square। So this we have used in the previous page here। Now next article is
capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. If a dielectric slab is introduced between the plates of a capacitor, so what will be its capacity? Capacitance of a parallel plate capacitor having vacuum or air between the plates of a capacitor is given by epsilon naught C naught, that is capacity with air as medium or vacuum, epsilon naught A upon D, where A is area of each plate, D is the distance of separation between the plates. Now a dielectric slab of thickness T is introduced between the two plates of the capacitor. T thickness of dielectric slab introduced between the parallel plates. E0 है external field, that is outside this dielectric. E0 is external field set up between the two plates of the capacitor. EP है induced field. तो जो dielectric slab रखोगे it gets polarized and an induced field is set up inside the dielectric. So EP is the induced electric field inside the dielectric in a direction opposite to direction of E0. But is E reduced electric field inside the dielectric क्या होगी? Reduced होगी E0 minus EP. Now potential difference. What is the potential difference between the plates? ये होगा reduced electric field inside the dielectric. यहाँ पे potential difference क्या होगा? इसके अंदर जो reduced electric field है, that is multiplied by the potential difference का क्या फार्मूला होता है? Potential difference का फार्मूला होता है electric field into distance. तो what is V? Potential between the two plates. Field outside the electric slab multiplied by thickness in which this field exists. इस स्लैब के बाहर जो फील्ड है वो क्या है? E0 है. और किस थिकनेस में है वो? D में से T को माइनस कर दो. Field outside the electric slab multiplied by thickness in which this field exists plus electric field inside the electric slab. इस electric slab के अंदर कितनी फील्ड है? multiplied by its thickness. That is outside the electric slab field is E0 और एक कितनी स्पेस में है? टोटल स्पेस है D, इसमें से T में इलेक्ट्रिक स्लैब है वो माइनस कर दो, D माइनस T प्लस what is electric field inside the slab? It is reduced electric field E and what is the thickness of the slab into T. Now since what is E0 upon E, this is dielectric constant and what is E? reduced electric field आ जाएगी E0 upon K. तो E0 upon K की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो E की जगह. तो V इज इक्वल टू E0 D माइनस टी प्लस E0 अपॉन K इंटू टी. E0 अपॉन K रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दी. इसमें से E0 कॉमन आ गया तो ये आ गया D माइनस टी प्लस टी अपॉन K. D माइनस टी प्लस टी अपॉन K. दिस इज V इज इक्वल टू E0. नाउ वी नो व्हाट इज E0. E0 इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज सिग्मा? चार्ज पर यूनिट एरिया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. तो put the value of E0 in this equation. V is equal to E0 की वैल्यू पुट करो Q upon A epsilon naught D minus T plus T upon K. Now capacitance of a capacitor क्या होती है? Q upon V. That is Q upon V. Q upon इससे डिवाइड कर दो V से. Q नीचे लगा दिया, A epsilon naught ऊपर आ गया, D minus T plus T upon K नीचे आ गया. Q से Q क्या हो गया? कैंसल. ठीक है. C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q एज इट इज और V से डिवाइड कर दो. C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन K. तो इसमें से क्या करोगे आप? इसको अलग अलग करो. ब्रैकेट खोल दो. ब्रैकेट खोल के दो टी वाली दो टर्म्स आ गई, उसमें से टी कॉमन निकाल लो. D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K और C is equal to epsilon naught A upon D into D minus T into 1 minus 1 upon K. So this is the formula for capacitance of a capacitor in which a dielectric slab of thickness T and dielectric constant K is introduced. Now if we divide it by C0, that is C0 is the capacitance with air. So what is its formula? Epsilon naught A upon D. Epsilon naught A upon D. So this will be like this. C
upon C0. What is C with medium? Epsilon naught A upon D minus T into 1 minus 1 upon K. This is epsilon naught A. तो इससे डिवाइड करना है C नॉट. C नॉट किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. एप्सिलॉन नॉट नीचे लगा था, D ऊपर लगा दिया, तो देखोगे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए. कैंसिल करने से क्या आ गया? D अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. दैट इज C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस T अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन K. ये देखो यहाँ पे D से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ये आ गया ना, ठीक है. ये आ गया D अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. ऊपर और नीचे D से डिवाइड कर दो. यहाँ D से डिवाइड करोगे 1, यहाँ D से डिवाइड करोगे 1 माइनस T अपॉन D 1 माइनस 1 अपॉन K. ठीक है. दिस इज C अपॉन C0. तो C0 को इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दिस फॉर्मूला. Now this denominator is less than 1, 1 minus something. This denominator is less than 1. So 1 divided by anything less than 1 is greater than 1. That is why C is always greater than C0. Thus capacitance of a parallel plate capacitor increases on the introduction of a dielectric slab between the plates of the capacitor. अगर dielectric slab between the plates of capacitor आप प्लेस करोगे तो उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. Now if T is equal to D, that is whole space, कैपेसिटर प्लेट्स है, इसकी सारी स्पेस जो है होल स्पेस इज फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक. सारी स्पेस को डायलेक्ट्रिक से फिल करोगे तो T इज इक्वल टू D हो जाएगा. तो इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A. तो यू पुट D इज इक्वल टू T माइनस T प्लस T अपॉन K. दिस K कैंसिल विद, और पुट T इज इक्वल टू D पुट कर दो, ऐसे करो. तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, K ऊपर आ जाएगा अपॉन D. तो दिस इज K टाइम्स C नॉट. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D? दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम. ठीक है. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D T माइनस 1 अपॉन K. इफ होल स्पेस इज फिल्ड देन T इज D. तो T की जगह D पुट कर दिया और ब्रैकेट खोल दी. D माइनस माइनस प्लस D अपॉन K. D कैंसल्स, K ऊपर चला जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D? C0. दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम. नेक्स्ट है the effect of placing a dielectric slab of thickness T between the plates of the capacitor is to reduce the thickness of air space effectively by an amount T into 1 minus 1 upon K. Basically, what is the effect of placing? What is the effect of placing a dielectric between the plates of a capacitor? जब डायलेक्ट्रिक को प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. मीन्स जो D है वो इफेक्टिव जो सेपरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी एयर कैपेसिटर की. दैट इज बाय दिस मच. ठीक है. यानी कि अगर एयर कैपेसिटर है, हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब जो इंट्रोड्यूस करी ऐसे T, इसकी कैपेसिटी, और एक कैपेसिटर एयर कैपेसिटर सेम प्लेट्स एयर कैपेसिटर जिसकी सेपरेशन कितनी होगी? D इंटू T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. एंड दिस विद ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T. दोनों की कैपेसिटी सेम होगी. यानी कि इंट्रोड्यूसिंग ए स्लैब मीन्स रिड्यूसिंग द इफेक्टिव स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बाय T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K विद एयर एज मीडियम. अगर हम इसकी कैपेसिटी को रिस्टोर करना चाहते हैं इसके द्वारा, यानी कि डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी और इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो व्हाट विल वी हैव टू डू? If we want to restore the capacitance to the original value, that is the value before placing the dielectric slab, then the distance between the plates must be increased by. तो इस प्लेट्स का हम डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे. ये हाउ मच डिस्टेंस वी विल इंक्रीज? T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K. This we will increase the distance by this. In the expression of capacitance of parallel plate capacitor filled with partially with dielectric,
This term d minus t plus t upon k is known as effective air separation between the plates. If the capacitor is filled completely with different dielectric slabs, ठीक है, जैसे कैपेसिटर प्लेट है, इसको हम डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से फिल करते हैं. ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक है K1, इसकी थिकनेस है T1, ठीक है. ऐसे सेकंड डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया कोई, ठीक है, दिस इट इज डाइलेक्ट्रिक K2, थिकनेस T2, सोन थर्ड डाइलेक्ट्रिक K3, सोन, ठीक है, K1, K2, K3 ऑफ डिफरेंट थिकनेसेस T1, T2, T3. Then its capacity is given by C is equal to epsilon naught A upon T1 upon K1, T2 upon K2 plus T3 upon K3, so on, without proof. Definition of dielectric constant in terms of capacitance. ठीक है, तो अभी हमने निकाला है कि बट इज कैपेसिटेंस इन मीडियम, अगर फुली भर फिल कर दो, कैपेसिटेंस इन मीडियम इज K टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर. तो बट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज Cm अपॉन C नॉट. दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. This is another definition of dielectric constant K. Now what is dielectric strength? Dielectric, we know that dielectric is polarized under the action of an external electric field. As the strength of electric field applied increases, molecules of dielectric undergo more and more stretching. Stage may reach when the stretching is so much that the electrons break up from the molecule of the dielectric on लैंग्वेज की गलती है लिखने में. जब हम इतनी फील्ड लगा देंगे कि स्ट्रेचिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे अलग हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. द डाइलेक्ट्रिक वुड बिकम इन कंडक्टिंग. तो डाइलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए उससे, तो वो कंडक्टिंग हो जाएगा, इट बिकम्स कंडक्टिंग. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स ब्रेकडाउन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. तो SI यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज वोल्ट पर मीटर, सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज किलो वोल्ट पर mm, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर. फॉर रीजंस ऑफ सेफ्टी, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली अप्लाइड इज ओनली 10% ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. एक्चुअली क्या होता है इन प्रैक्टिस, we apply electric field only 10% of the dielectric strength of the material. So this completes the theory part of capacitance.